Hello students, welcome back to my YouTube channel. Friends, in today's lecture, we'll be talking on exceptions to the law of demand. We have seen law of demand in the previous video. You can see the video. आपके लिए उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ. What the law says that price and demand has inverse relationship. Higher the price, lower the demand, and vice versa. It shows that functional relationship between price and demand. Dx is a function of price. Okay, in this lecture we'll be talking on exceptions to the law of demand. Friends, in exceptional circumstances you can see that demand curve slopes is left to right upwards. How? I'll tell you. OP is the original price and OQ is the original quantity demanded. X axis, Y axis. Price in rupees as you know, and here quantity demanded. When price is OP, quantity demanded OQ. When price rises from rises from OP to OP1, OP to OP1, price rises. Demand also rises from OQ to OQ1. It is called an exceptional demand curve. Higher the price, higher the demand, and lower the price, lower the demand. It is called an exceptional demand curve which slopes left to right upwards. It is also known as positive demand curve. It is slopes. ये क्या है हम लोग अभी डिटेल में बोलने वाले हैं. सो ये अगर आपके दिमाग में रहेगा तो अच्छी तरह से हम लोग फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. नंबर 1, गिफेंस पैराडॉक्स. Paradox, it means opposite, different. Prestige goods, speculation. Number 4, price illusion. Number 5, ignorance. Number 6, habitual goods. We'll see one by one. Very important, very easy. कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं. ओके, सो नंबर 1, गिफेंस पैराडॉक्स. Very important. It can be asked for short note also. Giffens, it means inferior goods, low quality goods. Okay, sir Robert Giffens has observed this behavior in England in relation to bread. उन्होंने एक ब्रेड के बारे में देखा कि जिस ब्रेड की क्वालिटी लोअर है. ठीक है, I'll explain. When price is OP, quantity demanded OQ. When price of a bread decline, ब्रेड की प्राइस कम हो गई. Law says that lower the price, higher the demand. Inverse relationship. But in the case of exceptions, people did not buy more because of an increase in their real income. They preferred to buy superior goods like meat, bread, and meat. क्या ऑब्जर्व किया? ब्रेड की प्राइस जब कम हो गई, जो इन्फीरियर क्वालिटी का गुड है, लोअर क्वालिटी का है. आपको समझने के लिए, अगर ब्रेड 2 दिन पुराना है और उसकी प्राइस अगर कम भी होती है तो डिमांड विल बी डैश. आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है ब्रेड्स प्राइस इज इक्वल टू डैश. आपको लिखना है लेस और मोर. ऑप्शंस आर लेस और मोर. यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स.
तो ब्रेड का प्राइस अगर कम हो रहा है, द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइन, पीपल डिड नॉट बाय मोर बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। उनका अगर इनकम बढ़ जाता है, दे विल प्रिफर टू बाय सुपीरियर गुड, वो मीट लेंगे, मटन लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लॉ सेज दैट, समझ लो, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, बट इन दिस केस यू कैन सी दैट प्राइस ऑफ inferior commodity falls, demand also falls. It shows that price and demand has direct relationship. In the law, what was there? Inverse. Where is inversely to each other. Higher the price, lower the demand. उल्टा था, यहाँ पर क्या है? Higher the price, higher the demand, lower the price, lower the demand. Direct relationship. It is called exceptions. लॉ के बिल्कुल उल्टा। उसके लिए आप लोगों को लॉ देखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी द लॉ। ओके, इट इज़ अंडरस्टूड। डिमांड फॉर inferior goods decreases if even price are lower. Is that clear? It is called Giffen paradox. Okay. The second point is इसके बिल्कुल उल्टा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा प्राइस डिमांड, lower the price, lower the demand. In the case of inferior goods, low quality goods. In second case, prestige goods. What do you mean by prestige goods? Prestige good, it means expensive goods like gold, diamond, jewelry, luxurious cars. आप लोग इसके अलग से एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो जो आपको पता है। In the case of gold, see what the law says: lower the price, higher the demand, higher the price, lower the demand. This is DD curve, demand curve, y axis, x axis. Now it is understood. Okay. Law says that higher the price, lower the demand. In the case of gold, jewelry, these are the expensive things, expensive commodities. Demand will rises if even prices are higher. These are the status symbol to show up the market, to show up the society. Rich people prefer to buy more if even prices are higher. Again, here you can see that direct relationship between price and prestigious goods. यहाँ पर था lower the price, lower the demand. Here higher the price, greater is the demand. Again same relationship. See the difference. Demand is lower if even prices are lower. Demand is higher if even prices are higher. Prestigious goods, Giffen goods. अगर ये आपके समझ में आता है तो अगला आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोगों को लोअर क्वालिटी के जो गुड्स होंगे, प्रेस्टीज क्वालिटी के जो गुड्स होंगे, उनके नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन इट मीन्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो उसमें हम लोगों ने देखा है स्पेकुलेशन. ओके, स्पेकुलेशन इट मीन्स एंटिसिपेशन. सी, वेरी सिंपल. सपोज स्पेकुलेशन अफेक्ट्स डिमांड.
Diwali is a festival. Suppose before Diwali vacation या फिर Diwali festival, you can see that although the prices of goods and services have been risen today, P to P1, say for example oil, sugar, etc. Okay. According to law, when price rises, demand should be lower. Although the prices of commodities, prices of oil, say for example oil, food oil, prices of food oil has been rises, people will demand more because they anticipates, they thinks before Diwali and during Diwali. Before Diwali prices will be higher, but they anticipates कि during Diwali further rise in general price level. Say for example rupees 200 quantity demanded 1 liter. Say for example समझने के लिए when price was 200 rupees, quantity demanded for oil was 1 liter. When price rises from 200 to 300, according to law, demand should be less, consumer should buy less. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? They are purchasing more because they thinks, they anticipates कि ड्यूरिंग दिवाली अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो और हमें वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसलिए टुडे दे विल बाय मोर इफ़ यून प्राइसेस आर हाइयर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसकी ज़रूरत है इस वक्त ज़्यादा है, उसको ज़्यादा डिमांड करेंगे. सेम प्राइस डिमांड direct relationship, higher the price, greater is the demand and vice versa. अगर उनको ही पता चला है suppose the price has been risen today, consumer will demand more because they thinks further rise in general price level. आगे चलकर और बढ़ा तो exceptions to the law of डिमांड वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वाइस वर्सा, अगर उनको लगा कि प्राइस कम हो रही है तो टुडे दे विल परचेज, दे विल बाय लेस. ओके, इट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस इल्यूशन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. स्टूडेंट, जनरली क्या होता है कि कंज्यूमर थिंग्स high priced commodity are having better quality. हम लोगों को क्या लगता है, पैसा अगर ज़्यादा है, if it is expensive, अगर ये महंगा है तो उसकी क्वालिटी भी ऐसी होगी. से फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड गुड्स, आप किसी भी ब्रांड का, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं किसी मोबाइल कंपनी का यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, सपोज वीवो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. आप लोगों को ब्रांडेड कमोडिटी जितनी भी पता है, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. व्हाट हैपन्स, प्राइस इज ओपी, क्वांटिटी इज ओक्यू. इन द केस ऑफ ब्रांडेड कमोडिटीज, कंज्यूमर थिंक्स, उनको ऐसा लगता है कि हाई प्राइस गुड्स आर हैविंग बेटर क्वालिटी, इसलिए पीपल डिमांड मोर फॉर सच कमोडिटीज इफ इवन
prices are higher. ये तो लॉ के उल्टा है. लॉ क्या कहता है? हायर द प्राइस लोअर द डिमांड. लेकिन लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर ब्रांडेड कमोडिटी है वो अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, एंड रिच पीपल बाय मोर, परचेस मोर, डिमांड मोर इफ यून प्राइस इज हायर. अगेन डायरेक्ट रिलेशनशिप. और कुछ लोग कहते हैं लो क्वालिटी, इफ द प्राइस इज लोअर दे थिंक्स कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है एंड दे डिमांड लेस. सेम लाइक गिफन गुड्स एंड प्रेस्टीज गुड्स, सेम डायग्राम है. इन सिंपल वर्ड्स, हायर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी डिमांडेड इन प्राइस इल्यूजन टू. प्राइस इल्यूजन का मतलब क्या है कि दे थिंक्स, इट्स अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट. उन्हें दिमाग में रखा है कि जो रिच लोग कपड़े पहनते हैं, जिनका ब्रांड है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होंगी, तो उसके लिए वो ज़्यादा पैसे देते हैं और ज़्यादा डिमांड करते हैं. अगेन सेम रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. नेक्स्ट इज इग्नोरेंस. आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये कहीं ना कहीं पर फेस किया होगा. एवरी बायर एंड एवरी सेलर शुड हैव प्रॉपर मार्केट नॉलेज. अगर जिस कंज्यूमर को प्रॉपर मार्केट नॉलेज नहीं है, ड्यू टू द इग्नोरेंस, सेम डायग्राम है. ड्यू टू इग्नोरेंस सम पीपल buy more if even price is higher. कुछ लोगों को पता ही नहीं है मार्केट में कि इसकी प्राइस कम होने वाली है या फिर कम थी, उन्होंने तब लिया ना जब बढ़ गई प्राइस, तब ले लिया, एंड वाइस वर्सा. In the exceptional case, in exceptional circumstances, consumer buy more with higher price and low with less price. It is called exceptional law, exceptions to the law of demand. Exception same, ignorance, पता है नहीं उनको, they doesn't know कि मार्केट में प्राइस बढ़ गया है. Due to the ignorance, they are ignored. Due to the ignorance, they will buy more if even price is higher and they will purchase less if even price is lower. I think it is clear. अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैबिचुअल गुड्स. मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा यूटिलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव टर्म, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हम लोगों ने इसके ड्रंकर्ड्स, टी, कॉफ़ी, कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं. एग्जाम्पल टी, हैबिचुअल गुड्स. किसी कंज्यूमर को हैबिट है टी कंज्यूम करने की. टी के प्राइसेस कितने भी बढ़ जाते हैं, डिमांड कर. He will consume more tea with higher price. It has no effect on quantity demanded if in price is higher. उनका हैबिट है टी, कॉफ़ी, स्मोकर्स, यू कैन से ड्रंकर्ड्स, उनको इतने हैबिट लग चुकी है उस चीज़ों की कि दे विल डिमांड मोर इफ यून प्राइस इज हायर. इन द अदर केस, जिनके लिए टी पसंद नहीं है, दे विल डिमांड लेस इफ यून प्राइस इज लोअर बिकॉज दे डोंट लाइक, दे डजंट लाइक टू हैव अ टी.
लोअर द प्राइस, लोअर द डिमांड, एक्सक्यूज मी। और जब प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। सो इट इज़ कॉल्ड हैबिचुअल गुड्स। सो दीज आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड गिवन पैराडॉक्स। लोअर द प्राइस, लोअर द डिमांड, it is called inferior or low quality goods. Second is prestige goods. In the case of prestige goods, rich people will buy more if even price is higher. Speculation, same. If he anticipates कि further rise in general price level, so today she will buy more if even prices are higher. Price illusion, ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट यहाँ पर है कि हायर द प्राइस बेटर विल बी द क्वालिटी। सो ब्रांडेड कमोडिटीज। इग्नोरेंस, ड्यू टू द इग्नोरेंस पीपल विल बाय मोर इफ योर प्राइसेस आर हायर एंड लेस इफ योर प्राइसेस आर लोअर। एंड इन द केस ऑफ हैबिचुअल गुड्स पीपल विल बाय मोर विथ हायर प्राइस एंड लेस विथ लोअर प्राइस। इन सिंपल वर्ड्स, इन एक्सेप्शंस प्राइस एंड डिमांड हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप। लॉ में क्या था? प्राइस एंड डिमांड हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप, इट इज़ लॉ। इन द केस ऑफ एक्सेप्शन, प्राइस एंड डिमांड हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप, हेंस डिमांड कर्व इज लेफ्ट राइट अपवर्ड्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव स्लोप्स डिमांड कर्व। थैंक यू सो मच। इसके नीचे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछूंगा, जो आंसर आप लोगों को पता है हेडिंग देकर आप लोगों को उनके एग्जाम्पल सीखने हैं। थैंक यू सो मच। एंजॉय योरसेल्फ। बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।